So initially, when we started our study of diseases of the cardiovascular system, we talked about atherosclerosis and the resulting hypertension from atherosclerosis, the problem of atherosclerosis producing coronary artery diseases or myocardial infarction, angina, and then prolonged atherosclerosis or other diseases producing cardiac failure. And now we go on to valvular diseases and congenital heart diseases that we are going to study now. And this is the fifth portion of the diseases of the cardiovascular system. Now, what we are going to study now, we have studied the valvular heart diseases that are produced because of certain diseases in the body developing after birth. Now, we shall also be studying certain valvular heart diseases or certain congenital abnormalities in the heart that are going to affect the blood flow in the body. For this purpose, we need to study the fetal circulation, how is it occurring and how does it change when when the baby is born in an environment where oxygen is abundantly available. Now, what is your topic of discussion here? You are having discussion about how does the fetus gets its circulation. So, अगर fetal circulation पर सवाल आए तो आपको इसमें से जवाब देना पड़ेगा. उसके बाद you will see what are the changes that occur in the fetal circulation when the baby borns. So, वो जो अगर आपके पास सवाल आ जाए changes in the fetal circulation at birth, तो वो भी इसी स्लाइड से आपको पता चलेगा. और फिर उसके बाद हम बाद में करेंगे कि भाई जब पेशेंट के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटीज होती हैं फीटल सर्कुलेशन में, चेंजेस आने में कोई एबनॉर्मेलिटीज हो जाएं तो फिर कैसी हार्ट डिजीजेस प्रोड्यूस होती हैं. सो तीसरी चीज जो इस डायग्राम से आप सीखेंगे वो चेंजेस इफ दे फेल टू अकर इन द फीटल सर्कुलेशन एट बर्थ, तो क्या होता है वो चीजें आपकी. सो हियर वी आर changes in the fetal circulation at birth. First of all, you look at this diagram. You see this is an umbilical vein और vein इसका नाम है और रंग इसका सुर्ख है. जो भी blood vessel towards the heart जा रही होती है उसको हम vein कहते हैं. लिहाजा maternal placenta से जो अम्बलाइकस बेबी के अम्बलाइकस में प्लेसेंटा से जो ब्लड वेसल जा रही है उसका नाम है अम्बलाइकल वेन. और हमारा जो फर्क है फ्रॉम द नॉर्मल सर्कुलेशन वो ये है कि वेन के अंदर आपके पास देयर इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट दिस अम्बलाइकल वेन कंटेन्स in the vein, in the normal person, there is deoxygenated blood, but the umbilical vein of the baby, of the fetus, contains oxygenated blood and is taking the oxygenated blood to the heart. यहाँ तक समझ आ गया? अब आप अगली चीज देखें. This purely oxygenated blood is going through the liver and inferior vena cava into this portion which is called the right atrium. ये जो सुराख है ना ये वाला, ये है inferior vena का सुराख into the right atrium. Superior vena cava is again a vein and it is bringing venous blood from the brain and the upper limbs into the heart, right atrium, through this orifice. ये सुराख है superior vena cava का और इससे blood आ रहा है venous blood into the right atrium, जैसा कि नॉर्मल लोगों में भी होता है और जैसा कि फीटस में भी होता है. So inferior vena cava is bringing oxygenated blood to the heart and superior vena cava is bringing deoxygenated blood to the heart. एक तो आपके पास ये चीज आ गई. दूसरी आपके देख रहे हैं कि जो अम्बलाइकल वेन है this is bringing oxygenated blood and this oxygenated blood is going to the liver and then it is going through hepatic vein and that hepatic vein is joining the inferior vena cava and liver का उस वक्त इतना कोई खास मेटाबॉलिज्म नहीं होता, तो इस वजह से ये ऑक्सीजनेटेड ही ब्लड है जो inferior vena cava में आ रहा है. एक और चीज जो आप इसको देख रहे हैं inferior vena cava की ब्रांचेस को, वो ये है कि यहाँ से
आपके पास गट में से वीनस ब्लड पोर्टल वेन लिवर में जा रही है। क्या जा रहा है लिवर में? पोर्टल वेन लिवर में जा रही है और लिवर से ये लेके जा रही है ब्लड इनटू द inferior vena cava. This is gut or the intestine of the baby. The venous blood from here is going through the portal vein into the liver, and here it is mixing with the blood supply of the liver, arterial blood supply or the oxygenated blood supply of the liver, and then it is joining the hepatic vein to form inferior vena cava. एक और चीज आप अब देखें, अब आप ये देखें कि the venous blood from the lower limbs is going, and the splanchnic veins is going from this splanchnic vein, and it is going to join the inferior vena cava. So the inferior vena cava is getting oxygenated blood from the umbilical vein coming from the placenta. मदर के साथ मदर ने उसको ऑक्सीजन दी है, and inferior vena cava is taking deoxygenated blood from the lower limbs as well as deoxygenated blood from the portal vein. And here you see the color of the blood, here was deoxygenated blood red था, तो यहाँ तक आते आते ये mix हो गया. Now this mixed blood, arterial and venous mixed blood is going through the inferior vena cava, और अब आपके लिए ये फ्लो जो है, ये जो फ्लो चल रहा है, ये सीधा राइट और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान में एक सुराख होता है, उससे गुजरता हुआ लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा. जो ब्लड इंफीरियर वीना केवा से थोड़ा बहुत ऑक्सीजनेटेड आ रहा है, क्योंकि अब ये मिक्स हो चुका है लोअर लिम्स के ब्लड के साथ, अब ये इस इंफीरियर वीना केवा से राइट एट्रियम से एक सुराख है, इसका नाम है फोरामेन ओवेल. आई होप कि आपने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी है हार्ट की. ये फोरामेन ओवेल इज अ जंक्शन, इज अ पार्ट, सुराख है ये, ठीक है, इज अ orifice between the right and the left atrium. तो ब्लड की फ्लो सीधा यहाँ से निकलकर और लेफ्ट एट्रियम में जाएगा और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा. अब आप ये देख रहे हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है, इट इज गोइंग डायरेक्टली इनटू एओर्टा. एओर्टा से इसने जाना है टू द ब्रेन. नाउ दिस इज द मैक्सिमली oxygenated blood that is available to the brain from the aorta. ठीक है, एओर्टा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जा रहा है. जितना भी ऑक्सीजनेशन है 58% ऑक्सीजनेशन रह जाती है, बाकी सब खत्म हो चुकी होती है, मिक्स हो चुका होता है. ये ब्रेन को जा रहा है और उसको ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है. उसके बाद एओर्टा जो है वो ब्लड को लेकर चली जाएगी सारी बॉडी में और वहां से अम्बिलाइकल वेन्स में, ठीक है, सारी बॉडी में और वहां से अम्बिलाइकल वेन्स में. अब आप अगली चीज देखिए. अगली चीज जो इसमें आ रही है वो ये है, ब्रेन से द ब्लड इज कमिंग बैक थ्रू द सुपीरियर वीना केवा, ब्रेन और अपर लिप से, इट इज गोइंग फ्रॉम द ओरिफिस हेयर, और इसका फ्लो की डायरेक्शन ऐसी है कि ये सीधा राइट वेंट्रिकल में जाता है. तो आपने देखा कि अम्बिलाइकल वेन में से जो ब्लड थ्रू इंफीरियर वीना केवा आया था, it skipped the right ventricle and lungs and it went directly into the left ventricle and supplied the brain. Whereas the venous blood which is coming through the superior vena cava into the right atrium goes into the right ventricle and then to the pulmonary artery. And this is deoxygenated blood. जो oxygenated था वो यहाँ से गुजरकर ब्रेन को सप्लाई करने के लिए चला गया था, और जो डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है वो पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है. एंड नाउ दिस पल्मोनरी आर्टरी हैज टू सेंड ब्लड टू द लंग्स. इधर आ रही है और पल्मोनरी आर्टरी से दूसरी ब्रांचेस यहाँ जा रही हैं. और लंग्स क्या करते हैं? रेस्पिरेशन. आपने फीटल लंग्स पढ़ लिए, आपने फर्स्ट ब्रेथ पढ़ लिया. इन रेस्पिरेशन हमने बहुत इस दफा फायदा रहा है कि हमारी रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन साथ साथ खत्म हो रही है, और आखिर में आप पढ़ते हैं फीटल सर्कुलेशन और फीटल चेंजेस इन द लंग्स एट बर्थ. और उसमें ये होता है कि द लंग्स आर लाइक कॉर्ड्स. ये जो लंग्स है ना, ये कॉर्ड्स की तरह के होते हैं, इसके दरमियान में कोई एल्वियोलाई नहीं होते यहाँ पर. सो यहाँ जो ब्लड जाता है वो वापस आ जाता है
ऐसे का ऐसा ही ऑक्सीजनेट हुए बगैर, क्योंकि ऑक्सीजन तो हवा बच्चे को मिल ही नहीं रही होती लंग्स तक, ठीक है ना। तो इसके अंदर कोई एल्वियोलाई नहीं खुले हुए होते, कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा होता। सो ब्लड जो है वो थोड़ा बहुत इन वेसल्स में जाता है, वापस आ जाता है। और अब आप ये देखेंगे यहाँ पर एक डक्ट है जो पल्मोनरी आर्टरी को एओर्टा से मिला रही है। So this blood, venous blood, is joining the aorta from pulmonary artery, और उससे पहले जो है ना आपकी कैरोटिड निकल चुकी होती है। तो जब डक्टस आर्टेरियोसस इसको ज्वाइन करती है तो मजीद वीनस ब्लड एओर्टा में आ जाता है। एओर्टा में पहले भी डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड मिक्स था, अब मजीद जब आपके पास वीनस ब्लड आ गया यहाँ से यहाँ, this is ductus arteriosus. The blood vessels for the brain and the upper limbs arise from aorta before ductus arteriosus joins it, and so the venous blood coming from the brain going to the right ventricle, going to the pulmonary artery. Now this venous blood joins the blood in the aorta, and this mixed blood, very impure blood, quite highly deoxygenated blood, is supplying the gut as well as gut को सप्लाई करेगी, देखिए यहाँ से, और लोअर लिम्स को। ये आइलियक आर्टरीज और कॉमन आइलियक और एक्सटर्नल और इंटरनल आइलियक आर्टरीज हैं। एंड देन the umbilical veins are umbilical arteries are formed. They are two in number and they are taking extremely deoxygenated blood back to the placenta. आपने देखा यहाँ पर आपके पास ये वेसल्स हैं जो कि खुली हुई हैं एट टाइम ऑफ बर्थ। दीज वेसल्स आर क्लोज्ड। फिर आप ये देखते हैं ये जो जगह है ना, ये जो अम्बलाइकल वेन है, बाद में इसको हम कहते हैं डक्टस विनोसस। ये जो अम्बलाइकल वेन लेके जा रही थी ना, जब अम्बलाइकस पे बंद हो जाती है ना वो वेन, तो बाकी का जो ब्लड वेसल है गोइंग टू द लिवर, उसका नाम होता है डक्टस विनोसस। सो एट बर्थ ये डक्टस विनोसस बंद हो जाती है। इसी तरह ये जो डक्टस आर्टीरियोसस है, जिसने लंग्स में चूंकि ब्लड नहीं जा रहा था, तो उसके बाद ये ब्लड जो है इट इज गोइंग इनटू द एओर्टा फ्रॉम डक्टस आर्टीरियोसस। और ये वाला जो ब्लड है, ये भी आपका, ये वाली ब्लड वेसल भी उस वक्त बंद हो जाती है जब बेबी बॉर्न होता है, ठीक है। और तीसरी चीज ये है कि ये फोरामेन ओवेल जो है ना, ये बंद हो जाता है एट टाइम ऑफ बर्थ। एट टाइम ऑफ बर्थ ये बंद हो जाते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर ऑब्लिटरेट नहीं हुए हुए होते, कॉर्ड्स नहीं बनी हुई होती या फाइब्रोसिस नहीं हुई हुई होती। कुछ दिन लगते हैं तो फिर ये तमाम ब्लड वेसल्स जो हैं ये फाइब्रोज्ड हो जाते हैं, ठीक हो गया। इनके फाइब्रोज्ड होने की वजह क्या है, वो आपको, जब आप पल्मोनरी सर्कुलेशन, और आपको एक असाइनमेंट दे रही हूँ कि आपने पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन के डिफरेंसेस लिखने हैं। जब आप ये डिफरेंसेस लिख लेंगे, ट्यूटोरियल में ये डिफरेंसेस चेक होंगे, और फिर उसके बाद आप जो है ना इस टॉपिक पर दोबारा मेरे साथ डिस्कशन करेंगे। So you have seen the fetal circulation in detail in the previous slide, and now we state in fetal circulation the right side of the heart has greater pressures than the left. So the right to left shunts remain open. हमने पीछे यही देखा था कि फुल प्रेशर से पर जो अम्बलाइकल वेन थी उससे ब्लड थ्रू लिवर पहुंच रहा था इनटू द राइट हार्ट, और उसके अंदर प्रेशर ज्यादा थे। क्योंकि उसके अंदर प्रेशर ज्यादा थे लिहाजा फोरामेन ओवेल ओपन रहा, और चूंकि जो राइट वेंट्रिकल से जो प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा था ब्लड, और लंग्स को तो जा ही नहीं रहा था, पल्मोनरी आर्टरी से डक्टस आर्टीरियोसिस में जा रहा था, तो वहां भी ओपन रहा वो शंट और डक्टस आर्टीरियोसिस से एओर्टा में, कि पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर ज्यादा है, एओर्टा में प्रेशर कम है, तो डक्टस आर्टीरियोसिस से एओर्टा में जा रहा था। So now step number 1, what happens at birth? After the first breath, the pulmonary resistance decreases. कैसे डिक्रीज हो जाएगी भी पल्मोनरी रेजिस्टेंस आफ्टर द फर्स्ट ब्रेथ? अब आपके पास एक सर्कुलेटरी ट्री है जिसमें शॉर्ट स्टम्प्स हैं आर्टरीज के, और फौरन वो राइट एंगल पर डिवाइड हो जाती हैं, प्रेशर ट्रांसमिट हो जाता है कैपिलरीज को। ये जो आपकी कैपिलरीज हैं
और ये जो पल्मोनरी आर्टरी है इसकी वॉल्स थिन है एज कंपेयर टू एओर्टा। इसके आर्टीरियोल्स की वॉल्स में कम स्मूथ मसल फाइबर्स हैं एज कंपेयर टू द आर्टीरियोल्स ऑफ द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और इसकी कैपिलरीज में कम सपोर्टिंग टिश्यू है। इसके इर्द गिर्द हवा के बैग्स हैं जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं। तो यहाँ पर अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो वो रप्चर हो जाएंगी कैपिलरीज इनटू द एल्वियोलाई। तो इसलिए पल्मोनरी सर्कुलेशन जो कि पहले कॉर्ड्स लाइक एल्वियोलाई में जा ही नहीं रही थी और हाई प्रेशर से शिफ्ट हो रही थी टू द डक्टस आर्टेरियोसस, अब लंग्स में ब्लड एक्सपेंड करेगा। जब लंग्स इस छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा कैपिलरी नेटवर्क में एक्सपेंड करेगा तो इसका प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है। सो नाउ एज द पल्मोनरी रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एंड द प्लेसेंटल सर्कुलेशन सीजेस, पीछे से जो ब्लड आ रहा था मेटरनल प्लेसेंटल यूनिट से वो आना अब बंद हो गया। तो अब आपके पास लंग्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है और वहां पर उसने प्रेशर जो है वो उसका कम हो गया है। So higher pressures on the left side close these shunts. अब लेफ्ट साइड के प्रेशर ज्यादा हो गए हैं, लिहाजा राइट एट्रियम में जो प्रेशर था जो फोरामेन ओवेल के साथ ट्रांसमिट कर रहा था ब्लड इनटू द लेफ्ट एट्रियम, अब लेफ्ट एट्रियम का जब प्रेशर ज्यादा होगा इट विल प्रेस अपॉन द leaflet of tissue that was covering the foramen ovale. लेफ्ट साइड पर आप अगर पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी तो आपको पता चलेगा कि ये एक तरह का वेल्व होता है जो ए वन साइडेड ब्लड फ्लो को अलाउ कर रहा होता है फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट। तो जब लेफ्ट का प्रेशर बढ़ेगा तो ये वेल्व बंद हो जाएगा, एक आपकी शंटिंग बंद हो गई। दूसरी, जब आपका एओर्टा में प्रेशर बढ़ेगा तो पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर कम होने से डक्टस आर्टेरियोसस जो है वो भी बंद हो जाएगी। तो दोनों शंट्स जो है हाई प्रेशर्स ऑन द लेफ्ट साइड क्लोज दीज शंट्स। Increased PO2 in the neonatal blood and decreased concentration of prostaglandin E2, क्या चीज है? दो चीजें हैं। वन इज इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लंग्स आ गए ना बच्चे में, खुल गए। अब तो ऑक्सीजन जो है अगर उसके पास फीटस में ऑक्सीजन जो है अगर उसके पास कम थी थोड़ी सी भी तो अब उसके पास अच्छी ऑक्सीजन लंग्स से जा रही है 97% सेचुरेशन के साथ into the aorta. So the aorta has got 97% saturated hemoglobin with oxygen, and the prostaglandin E2, which was a vasodilator produced due to hypoxia in that area, is no more produced because hypoxia is now absent. इन दोनों चीजों की वजह से, एक तो जब इंक्रीज PO2 होता है तो हमने पढ़ा हुआ है कि स्मूथ मसल फाइबर बहुत अच्छा सा कंस्ट्रिक्ट करते हैं। दूसरे जो वेजोडाइलेटर वहां बन रहा था हाइपोक्सिया से वो वेजोडाइलेटर भी नहीं बनेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 भी गायब हो जाएगा, तो सीवियर वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी ऑफ द डक्टस आर्टेरियोसस। एक तो हमने प्रेशर ग्रेडियंट की बात की ऊपर और अब नीचे हम बात कर रहे हैं केमिकल चेंजेस की। तो इंक्रीज PO2 एंड decreased PGE2, both of them are responsible for severe vasoconstriction of ductus arteriosus. इसके बाद उस वक्त तो फौरी तौर पर 95 आवर्स के अंदर अंदर, 95 आवर्स ऑफ बर्थ बता रही हूँ मैं आपको, 95 आवर्स के अंदर अंदर ब्लड फ्लो पल्मोनरी आर्टरी से एओर्टा में और एओर्टा से पल्मोनरी आर्टरी में खत्म हो चुका होता है। ठीक है। फिर बाद में एंडोथेलियल टिश्यू एंड द फाइब्रस टिश्यू ग्रोथ अकर्स एंड परमानेंट क्लोजर ऑफ द डक्टस आर्टेरियोसस अकर्स। ये दोनों चीजें आपको इसलिए बताए हैं कि अभी हमने थोड़ी देर बाद कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस पढ़नी है और उसमें आपको इनकी जरूरत महसूस होगी। So now we go on to the congenital heart diseases, and the causes are viral infection in the mother due to the first trimester of pregnancy, जैसा कि जर्मन मीजल्स में होता है। आप रूबेला पार्टी वगैरह तमाम चीजें जो हैं वो एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ चुके होंगे। दूसरे हैं हेरिडिटरी डिफेक्ट्स और कंजेनिटल डिफेक्ट्स जो कि जेनेटिक म्यूटेशन से पैदा हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ देम इज हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। इसके अलावा यहाँ वास्कुलर स्टेनोसिस, लेफ्ट टू राइट शंट और राइट टू लेफ्ट शंट भी आएंगे जो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे।
Now let's talk about hypertrophic cardiomyopathy, the first condition. It is the most common inherited cardiac disease, and what happens in this disease is the thickness of the interventricular septum and wall of the left ventricle increases. इससे हमारे पेशेंट को aortic stenosis का प्रॉब्लम होता है. Now this increase in thickness of the left ventricular walls and the septum produces disorderly arrangement of myocytes and the conducting cells. तो ना तो मायोसाइट्स सही तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं प्रॉपरली, और ना ही कंडक्टिंग सेल्स उनको प्रॉपरली सप्लाई कर रहे होते हैं उस ऑर्डर में जिस ऑर्डर में नॉर्मल बंदे का हमने पढ़ा था कि हमारी कंडक्टिंग टिश्यू की क्या डिस्ट्रीब्यूशन है और हमारी कार्डियक मसल की क्या प्रॉपर्टीज है. The reason is genetic mutations of myosin, troponin, and tropomyosin. Now we are at the pathophysiology of the disease, and we see that the thickened septum producing aortic stenosis. This aortic stenosis decreases the stroke volume. आप aortic stenosis पीछे पढ़ चुके हैं और आप देखते हैं कि वेंट्रिकल्स बड़ी मुश्किल से स्टेनोज्ड वाल्व में से थोड़ा सा स्ट्रोक वॉल्यूम बाहर निकाल पाते हैं. This stroke decrease in the stroke volume decreases the blood flow into the heart and blood flow into the systemic circulation. नॉर्मल में तो फिर उस बंदे की सही चलती है, लेकिन जब वो एक्सरसाइज कर रहा होता है उस वक्त ये ज्यादा हो जाती है. अच्छा, अब आपको ये भी बताना है कि जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त सेप्टम थिकन नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बच्चा बड़ा होता जाता है, उसके हार्ट की आगे से आगे साइज बड़ा हो रहा होता है, उस वक्त उसकी जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से उसमें थिकनिंग ऑफ द सेप्टम आती है. सो बच्चे में हो जरूरी नहीं है कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज ऐसा हो, लेकिन बाय द टाइम ही इज एडल्ट उसकी एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी कम होती जाती है. बाज़ नहीं पता चलता कि ये डिजीज उस बंदे को है और अचानक कोई मसला हो सकता है. Now, the earliest warning sign is the chest pain. शुरू में जब कार्डियक रिजर्व कम होता है, क्योंकि एक्सरसाइज में पेशेंट जो है वो अपना ब्लड फ्लो ज़्यादा नहीं कर पाता टू द हार्ट एंड टू द बॉडी, तो हार्ट सबसे पहले मुतासिर होता है और एंजाइना की कंप्लेंट आ जाती है. इसके अलावा चूँकि कंडक्टिंग टिश्यूज जो हैं वो भी डिसरप्टेड हैं, इसलिए बाज़ औक़ात फेटल एरिथमियाज शुरू हो सकते हैं. मुझे किसी एक फेटल एरिथमिया का नाम बता दें. वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, या एक और है टॉर्सेट डी पॉइंटिस, वो आपने WPW सिंड्रोम में मैंने आपको दिखाया था. Now coming to these problems, this disease can go undetected and may be the cause of unexpected sudden cardiac death in a young athlete. अब आपका जो पेशेंट है वो उसे कुछ नहीं पता, कोई एंजाइना नहीं है, कुछ नहीं है, अब वो ट्रेनिंग कैंप में चला गया, वहाँ उसकी ट्रेनिंग उन्होंने शुरू की, और ट्रेनिंग शुरू करने से अगर फेटल एरिथमिया हो गया तो सडन कार्डियक डेथ हो जाएगी. वरना तो ये है कि एंजाइना से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो सडन कार्डियक डेथ है ना वो आमतौर से फेटल एरिथमिया की वजह से होती है, क्योंकि कंडक्शन पाथवे भी डिसरप्टेड होता है. ट्रीटमेंट इंक्लूड्स एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटी एरिथमिक ड्रग्स, क्विनिडीन वगैरह होती हैं. नंबर 2, सर्जिकल रिपेयर ऑफ सेप्टम एंड द वेल्व, और नंबर 3, हार्ट ट्रांसप्लांट. ये इसकी ट्रीटमेंट्स हैं. अगर वक्त पर पकड़ा जाए, कोई सिम्टम्स हो तो वक्त पर पेशेंट पकड़ा जाता है. सिम्टमलेस डिजीज में कोई भी प्रॉब्लम अचानक बाद में सामने आ सकती है. पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस. डक्टस आर्टेरियोसिस आपको पढ़ा दिया था फिटल सर्कुलेशन में शुरू में इस लेक्चर में. अब जो मसला आया है वो ये है कि वो बंद होने की बजाय खुली रह जाए. अगर वो बंद होने की बजाय खुली रह जाए तो क्या होगा? लेफ्ट साइड से राइट साइड पर ब्लड जाएगा. फीटस में कैसे जा रहा था? पल्मोनरी आर्टरी से जा रहा था एओर्टा में, यानी राइट साइड से लेफ्ट साइड पर जा रहा था. लेकिन जो ही बेबी बॉर्न हुआ है, अब रिवर्सल ऑफ प्रेशर्स हो गया है. अब एओर्टा का प्रेशर ज्यादा है, पल्मोनरी आर्टरी का कम है. अगर किसी वजह से ये वेसल खुली रह जाए
तो फिर लेफ्ट साइड से यानी एओर्टा से पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाना शुरू हो जाएगा. So the ductus arteriosus closes within few hours to days after birth due to high oxygen content of the aortic blood, but it may persist. What is the type of murmur in this disease? There is machinery murmur जो कि तमाम वक्त में चलता रहता है. कोई आप में से मुझे बता सकते हैं कि ये तमाम वक्त में क्यों चलता रहता है? सोचें. ये तमाम वक्त इसलिए चलता रहता है कि हम वेंट्रिकुलर सिस्टली और वेंट्रिकुलर डायस्टली को वेल्व के साथ अलग नहीं कर रहे हैं, बल्कि ब्लड एओर्टा में जा चुका है और एओर्टा में ब्लड तमाम वक्त मौजूद है और उसमें से निकल कर तंग सी डक्टस आर्टेरियोसिस से पल्मोनरी आर्टरी जो कि बहुत खुली सी है उसमें जा रहा है. तो मरमर जो है वो तमाम वक्त चलता है, सिस्टली में भी और डायस्टली में भी. 1 to 3 years ऑफ एज के बाद ये सुनाई दे सकता है. ये हार्श होता है, ब्लोइंग होता है और सिस्टली के दौरान ये लाउडर होता है क्योंकि सिस्टली में एओर्टिक प्रेशर ज्यादा होता है. अब पहले तो फीटस में तो जरूरत थी पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस की, लेकिन अगर न्यू बॉर्न में इसकी जरूरत नहीं थी तभी तो अल्लाह मियां ने इसे बंद करवाया था. तो अब जब आप देखें कि ब्लड जो है वो एओर्टा से आपने वेंट्रिकल से जोर लगा के एओर्टा में भेजा और वहां से पल्मोनरी आर्टरी में चला गया. ब्लड गया एओर्टा में और एओर्टा से पल्मोनरी आर्टरी में चला गया. ये देखें यहाँ आ रहा है. तो ये सर्कुलेशन होती है बार बार लंग्स में से, लेफ्ट से राइट साइड पर जा रहा है, लंग्स में से बार बार सर्कुलेट कर रहा है, फिर वहां से वापस लेफ्ट साइड पर आ रहा है और फिर दोबारा लंग्स में जा रहा है. सो द 2/3 ऑफ द ब्लड री एंटर्स द लंग्स एंड इज रीऑक्सीजनेटेड. तो कितना गया तमाम बॉडी को? तमाम बॉडी को 1/3 गया, क्योंकि 2/3 जो है वापस लंग्स में चला गया. तो तमाम बॉडी को 1/3 ऑफ द ब्लड गया, बाकी सारा दोबारा लंग्स में चला गया. इस वजह से जो हार्ट है इसके कार्डिक आउटपुट ज्यादा करने की कैपेसिटी जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि कार्डिक आउटपुट हार्ट से तो पूरा निकल रहा है लेकिन टिश्यूज में सिर्फ 1/3 जा रहा है. रेस्पिरेटरी रिजर्व जो है वो भी कम हो गया, क्योंकि लंग्स में पहले ही इतना ब्लड भर गया है कि अब अगर आपको लंग्स को एक्सपेंड करने की जरूरत पड़े मजीद ऑक्सीजनेशन के लिए तो वहां पर जगह ही नहीं है. पहले से ही ब्लड उसमें 2/3 ऑफ द कार्डिक आउटपुट हर मरतबा उसमें चला जा रहा है, तो मसला होगा. एक्सरसाइज प्रेसिपिटेट्स कार्डियक फेलियर एंड पल्मोनरी एडीमा. अगर आप नॉर्मल चलते रहें, बिस्तर में बैठे रहें तो मसला कोई नहीं, लेकिन जब बच्चा खेलना शुरू करता है 1 to 3 years की एज में, डिपेंडिंग अपॉन द सेवेरिटी ऑफ द डिजीज, एक्सरसाइज से पेशेंट की नीड्स बढ़ती हैं और नीड्स जब उनको ना पहुंचाई जाएं, हार्ट बॉडी की नीड्स को पूरा ना कर सके, तो उसे हम कार्डियक फेलियर कहते हैं. दूसरी तरफ लंग्स में इतना ब्लड जा रहा है, इतना ब्लड जा रहा है कि एक्सरसाइज में जब वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाता है और लंग्स में और भी ब्लड जाता है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, तो प्रेशर इंक्रीज होकर लंग्स के अंदर टिश्यू फ्लूइड फॉर्मेशन ज्यादा हो जाती है और इसे हम कहते हैं पल्मोनरी एडीमा. ट्रीटमेंट में क्या करना है? आप इसे पहले लाइगेट करेंगे और फिर काट देंगे और फिर इसको सुचर करके ये जगह से बंद करेंगे और इसको सुचर करके ये जगह से बंद करेंगे. सुचर कहते हैं टांका लगाने को. सो द ट्रीटमेंट इज ligation or division of the patent ductus arteriosus, closure of the two ends. ठीक हो गया? Now this murmur is of course a machinery murmur, but it is more heard more loud during the systole. And at this moment we are going to talk about 3 types of hyperkinetic states in which there is no valvular heart disease but still there is a systolic murmur, and these are anemia, fever, hyperthyroidism. Anemia में क्या होता है? Viscosity of the blood is low, so the ventricle pushes the blood into aorta. Because of low viscosity, the speed of flow of blood is more, and this produces turbulence in the blood flow in aorta, and this produces systolic murmur. In fever, the temperature is more, the force of contraction of the heart is more, it forcefully contracts and pushes the blood into the aorta, and this forceful contraction of the heart is causing
valvular is causing systolic murmur in the aortic area. Then comes hyperthyroidism. Here the metabolism is more. Because of more metabolism, there is vasodilation in the periphery. This vasodilation eases out the venous return. So the venous return is more, and because of the more venous return, there is increased end-diastolic volume, increased Frank-Starling's law operation, and increased stroke volume, producing high velocity circulation, and because of that, there is a systolic murmur. So now comes another condition, that is tetralogy of Fallot. These are four abnormalities. Number one is aorta originates from the right ventricle. Number two is the pulmonary artery is stenosed. Number three is there is a ventricular septal defect. वेंट्रिकल सेप्टम में होल होता है, हमने पढ़ा था ना फोरामेन ओवेल होता है उसमें फीटल सर्कुलेशन में, वो तो राइट और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान था। अब आपको एक फोरामेन जो है वो वेंट्रिकुलर सेप्टम में नजर आएगा। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है, या फिर एओर्टा जो है वो उस होल के ऊपर आके उसमें से रास्ता ले रही होती है। ये तो थी आपकी तीन प्रॉब्लम्स, और चौथी प्रॉब्लम ये है कि राइट वेंट्रिकल जो है वो एनलार्ज हो जाता है, क्योंकि एओर्टा में पंप करने का काम जो है वो राइट वेंट्रिकल को करना पड़ता है। सो वी सी द एओर्टा originates from the right ventricle and the pulmonary artery is stenosed, so the right ventricle pumps blood into the aorta with high pressure. The blood from the left ventricle also flows into the right ventricle, and from there it goes into the aorta. This is the कहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा में जाएगा? दिस इज थ्रू द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, और इफ द एओर्टा इज कवरिंग द राइट एज वेल एज द लेफ्ट वेंट्रिकल ओवर द होल, तो फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में चला जाएगा ब्लड। तो जब आपके पास ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहले जाएगा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के थ्रू, और फिर जो एओर्टा जो कि राइट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट कर रही है, फिर राइट वेंट्रिकल एओर्टा में पंप करेगा ब्लड, तो उसकी एनलार्जमेंट हो जाएगी, और ये चौथा फीचर है। सर्कुलेटरी इफेक्ट्स में क्या है, वो राइट टू लेफ्ट, वो लेफ्ट टू राइट शंट आपने पढ़ा था, अब आप पढ़ने लगे हैं राइट टू लेफ्ट शंट। उसमें क्या होगा? साइनोसिस होगी, क्योंकि लंग्स में ब्लड नहीं जा सकता, ये एरिया बंद है। पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोज्ड है, जो वीनस रिटर्न आ रहा है राइट वेंट्रिकल में वो लंग्स में नहीं जा सकता। ठीक है, अब वो कहाँ जाएगा? लंग्स में जा नहीं सकता, तो वो एओर्टा में जाएगा। जो लंग्स में थोड़ा बहुत ब्लड जा रहा है, जब वो ऑक्सीजनेट होकर आएगा तो वो लेफ्ट लंग में जाएगा, लेफ्ट लंग से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, एंड फ्रॉम हेयर इट इज गोइंग इनटू द राइट वेंट्रिकल, और इस राइट वेंट्रिकल से फिर अब ये एओर्टा में जाएगा। तो मिक्सिंग ऑफ द ब्लड होगी, एक तो जो है लंग के अंदर ब्लड कम जा रहा है, इसकी वजह से साइनोसिस होगी। Cyanosis is because shunting of the blood past the lungs without it becoming oxygenated. Treatment इसकी क्या है? ट्रीटमेंट सर्जरी है। ओपनिंग ऑफ द पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस को आर्टिफिशियल वेल्व डाल के ओपन करेंगे। क्लोजर ऑफ द सेप्टल डिफेक्ट, ये जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान वेंट्रिकुलर सेप्टम में ये जो होल है इसे बंद करेंगे, एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लो पाथवे, और एओर्टा जो यहाँ पे आई हुई थी ओवर राइडिंग कर रही थी, इसको वापस लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ लॉन्च करके, और जब हम ये बंद करेंगे तो आपका पेशेंट जो है उसकी मरम्मत हो जाएगी और ट्रीटमेंट हो जाएगी और वो ठीक हो जाएगा।